जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हम सभी के जीवन में दिया और अब तक संभाल के रखा है और यहाँ तक लाया कि हम उसकी आराधना और उसके बच्चों से कुछ सीखने वाले हो सके। तो आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से एक छोटी सी दुआ मांगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम में से हर एक के जीवन में डाला मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर इस काबिल बनाया कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक उस चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, हम यहाँ जो भी करते हैं मेरे खुदा, जितने लोग देखते हैं मेरे खुदा आशीषित होने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर तेरे साथ चलने वाले हो सके और उस जय के मुकुट को पाने वाले हो सके। हर एक चीज़ को, अपने आप को और देखने वालों को सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मेरे खुदा
on high. There's no name matching to your name, Lord. We exalt you, Master, we love you, Lord. We exalt your name on high, we love you, Lord. Your love never fails, Master. It never gives up, oh Lord. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love. Yes, Master. Your love never fails, oh Lord. Our people who never fails. You love so much that you sent your only Son to us, oh Lord. We thank you for your love. We thank you for your love, Master. We are not worthy to have your love, Master, but still you poured your grace for us. Your matchless grace on us, O Lord. We thank you for your love. We thank you for your grace, O Master. Thank you for the health. Thank you for the food. Thank you for the shelter you have given us, O Lord. We exalt your name on high, O Lord. We thank you, Lord. We exalt your name on high, O Lord.
praise you, we adore you, we exalt your name on high. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. We are happy to see you people on this occasion, on this Sunday. हमें देख के बहुत खुशी हुई आप लोगों को इस सुबह अवसर पे। Today we are going to see a small passage or a small chapter regarding the love of Father that showed on us. आज हम छोटे से मनन करेंगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में। On this background, and I want to take it to the next level, how God wanted us to love our fellow people. और हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम उसे कैसे प्यार करें। As we all know, in Bible we have a separate passage for the definition of love. हम सभी जानते हैं कि बाइबल में एक अलग रूप से, एक विशेष रूप से एक पैसेज है लव के विषय में, प्यार के विषय में। Paul wrote this letter to a church regarding this peculiar topic or this specific topic of love. पौलुस प्रेम के विषय में एक चर्च को लिखता है, एक विशेष टॉपिक जिसे लव प्रेम के बारे में। So it's in the, as we all know, it's in the chapter like 1 Corinthians chapter 13. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये पहली कुरिन्थियों की किताब में पाया जाता है, पहली कुरिन्थियों। So here Paul states or explains how the love is, how the Father's love is, how the Jesus love is for about us, for all of us. पौलुस इस पत्र में ये हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए किस प्रकार से, परमेश्वर किस प्रकार से प्रेम प्रकट करता है। He actually wrote this message to the church. ये पौलुस इस पत्र को विशेष करके चर्च के लिए लिखता है। So it gives the complete definition of love, जो कि एक पूरी तरीके से प्रेम के विषय में परिभाषित करता है। The worldly explanation or worldly things cannot compromise with these things. जो कि सांसारिक चीजें, हम प्रेम से सांसारिक चीजों को नाप नहीं सकते। It's totally a different way of conveying the explanation of love. ये बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेम को परिभाषित करना है। So that is how Paul has conceived this topic love. और इस प्रकार से पौलुस ने इस प्रेम के विषय को दर्शाया है। So as we all know, Jesus once said, like, this is my new commandment to you all. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये एक नई वाचा है, that love your father or love the God the most. एक नई आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से, अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करो। And second commandment he gave, और दूसरी आज्ञा देता है, love your neighbor as you love yourself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। Yeah. So today we are going to discuss on these topics. आज हम इस विषय में मनन करने जा रहे हैं। On this specious occasion that we have a situation called coronavirus. जैसा कि हमारे पास एक परिस्थिति है कोरोना वायरस करके। So it actually shook the world like anything. जैसा कि कोरोना वायरस ने इस पूरे धरती को हिला दिया है। It actually spoiled the day-to-day activities of men and women. जो कि मानवता के हर एक व्यक्तिगत कार्यों को नष्ट कर चुका है। So how many believe that still everything is in control? कितने लोग भरोसा करते हैं कि जो हर एक चीज है अभी तक कंट्रोल में है? So how many think that this situation is good for humanity? और कैसा ये लोग कैसा आप लोग विश्वास करते हैं कि ये जो परिस्थिति है वो मानवता के लिए ठीक है? This is what I believe, that it's a very good situation that we can meditate on things which God has given us. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम उन चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से मनन कर सकते हैं। So we can just read these chapter means 13 First Corinthians chapter 13 verses a little bit. और हम थोड़ा इस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को पढ़ेंगे। We can start reading from first. मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञानों को समझ लूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अननीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब स्वर्ग आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। So in the last, Paul concludes a very different way life. He takes two great things, two big things that Christianity follow. That is faith and hope. जो पौलुस है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से इस स्क्रिप्चर को इंड करता है। वो दो चीजें जो मेन है एक मसीही जीवन में, उन दो चीजों को लेता है, विश्वास और आशा को। So these are the two main characters a Christian will follow. और ये दो चीजें हैं जो मसीही जीवन में बहुत अनुगमन होते हैं, Faith and hope. एक विश्वास और आशा। But what Paul is telling that, और पौलुस क्या बताता है कि he is telling above all these things that you follow, पौलुस बताता है कि इन हर एक चीजों से जो आप अनुसरण करते हो, love is greatest. प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। So that is what Christ is expecting from us. और यही परमेश्वर भी हमसे चाहता है। See, if you take in the earlier days of the missionaries coming to the world, means were coming to this place of India. अगर आप सोचते हैं कि जब मिशनरी बहुत समय पहले जब भारत आते थे, So those times they only had of doing works with lot of love. उनके पास सिर्फ एक ही चीज था, वो था कि वो जो भी करते थे प्रेम के साथ करते थे। So as we can take the example of Mother Teresa or Graham Staines. हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं ग्राहम स्टेन्स। They never actually focused on the things which of converting people to Christianity or converting things from them or nothing else. उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि लोगों का धर्म परिवर्तन करना। They only concentrated on showing love towards others. उनका मेन मकसद था परमेश्वर का प्रेम लोगों को प्रदर्शित करना। So their prayer quality or prayer goal of their life is to show love to the humanity. उनकी जो मेन मकसद था प्रार्थना का, वो था कि अपना जो परमेश्वर का लव है लोगों के सामने दिखाना, which helped them less to speak and more to work. जो कि मदद किया उनको कि वो बहुत कम ज़्यादा बोले, बहुत कम ज़्यादा प्रचार करें और बहुत ज़्यादा काम करें। Today's scenario, if you take the today's scenario, people are more into speaking, more into preaching, more into do this, that, but they fail doing the main thing of what Christ has told us. और अगर हम आज के बारे में बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा प्रचार करना पसंद करते हैं, काम करना उतना पसंद नहीं करते हैं। So that is what Christ is expecting from us. यही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। Show your love अपना प्रेम प्रदर्शित करो as you love yourself. जैसा कि तुम अपने आप से प्यार करते Here comes a different thing like हो। यहाँ एक बहुत अलग सी बात आती you है। can love others only if you love yourself. आप दूसरों को तभी प्यार कर सकते हो जब आप अपने आप से प्यार करते हो। Because Christ said like that, na? So if you love yourself, so give the same love to your neighbor. क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो वैसे ही दूसरों से करो। So today I encourage you all people to love yourself. और मैं आपको आज प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने आप से आप प्यार करें। But this is a very good situation for you to sit
and think of yourself and think of your good things, think of your characters and build up their characters and love yourself first. और ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति है कि हम बैठे हैं तो हम अपने आप को पहचानें, अपने अच्छे गुणों को निकालें और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें And give the same love to the neighbor. और वही प्यार सब दूसरों को दें। So this is what Christ expects from us. और यही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। And this helped the missionaries, the olden days missionaries, to do more than today. और यही बात है जो मिशनरियों को मदद किया कि वो दूसरों से प्यार करें। So it helped people to understand Christ. और ये मदद किया कि लोग प्रभु यीशु मसीह को समझें। So it was helping people to easily understand what Christ actually came for. और ये बहुत अच्छे तरीके से मदद किया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आया इस बात को समझने के लिए। So that is what people say, your words will speak more than your action. और जैसा कि Sorry, your action speaks more than your words. और जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे जो शब्द हैं, तुम्हारे जो कार्य हैं, वो तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। If you take today's scenario, people are not able to love their neighbors. पर अगर मैं आज की बात करें तो वो अपने पड़ोसी से उतना प्रेम नहीं करते। But they are comfortable doing all commandments which God has given. और वो उन सारी चीज़ों में आगे हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो आज्ञाओं में दी गई हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करने में बहुत आगे हैं। But this is not Christ has said us. पर ये बात नहीं है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा। And he said only to love others as you love yourself. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे अपने आप से प्यार करते हो वैसा ही तुम अपने पड़ोसियों से करो। And if you take Luke chapter, अगर हम पढ़ें लूका की पुस्तक में chapter 6, लूका उसका 6 अध्याय 27, verse 27. लूका उसका 6 अध्याय उसका 27वां पद में आप सभी लोग पढ़ूंगा। परंतु मैं सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। So Christ has took this one more greater level. प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात बताई जो ये प्यार के विषय में बहुत बड़ी बात है। What he said, he doesn't say that you love your neighbors. प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये नहीं कहा कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। He just said love your enemies. उसने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। This is not a simple deal. ये एक साधारण सी बात नहीं है। Yeah, because loving your neighbor is a very easy thing compared to loving your enemy. क्योंकि ये बहुत आसान बात है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने शत्रु से ना करें। So here you have to think of the love he had for the humanity. इस बारे में हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो प्यार था लोगों के बारे में। And he actually explained, means he actually lived like that. और उसी ने प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत किया। When you take the crucifixion time of Jesus Christ, और जब हम क्रूसीकरण के बारे में सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, in the last time of his breath, अंतिम समय में जो अंतिम सांसें ले रहा था, he said, people don't understand what they are doing, Lord, so please just forgive them. उसने कहा कि हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। He loved them so much. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। So on seeing all these things, इन सब चीजों के देखने के बाद a soldier is seeing all these things from down. जो सेना लोग हैं वो नीचे से सब चीजें देख रहे हैं। And he's hearing everything that Jesus was telling to his father. वो सब कुछ सुन रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं। Then at last he came to recognize that how Lord loved me. और बहुत अंतिम उनको पता चलता है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्यार किया। And he was able to accept Christ that time. और उस समय वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। So this is what love makes. और यही बात है जो प्यार बनाता है। That is what I believe. What commitment cannot do, love can do. जो मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ नहीं कर सकता, जो वाचा नहीं कर सकती, वो प्रेम कर सकता है। I can tell you one more thing also. मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ। In previously when Peter was with Jesus, जब बहुत समय पहले जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ था,
Peter was saying, Lord, I will die for you, I will do this for you, I will stand behind you. हाँ, पतरस कहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए ये What- करूंगा, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। Whatever may be the situation, I'll be standing beside you, Lord. सिचुएशन परिस्थिति कैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Then you can see, it was his commitment, okay? It was his commitment. ये जो था उसका वादा था। So at last, when Christ was taken away, or Christ was taken to the crucifixion, पर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसी करने के लिए लिया गया, he ran away. वो भाग गया, He ran away. वो वहां से भाग गया। So after then, Jesus was resurrected, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, and he came to Peter and asked, जब वो मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आया Peter, do you really love me? और पूछा कि पतरस क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? Do you really love me? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? And he said, yes, Lord, I really love you. पतरस ने कहा हाँ परमेश्वर And मुझसे प्यार करता है। finally, third time he asked, तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार पूछा do you really love me? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? Then he said, Lord, you know everything. पतरस ने कहा परमेश्वर तुम सब कुछ जानते And you know हो I love you. और तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Then Jesus said, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे you कहा will lead my sheep. तुम मेरी भेड़ों को चलाओ। And after that, और उसके बाद he was able to, means in single preaching, he was able to share the gospel of Christ, and people were accepted. On a single preaching, 3,000 people were accepted. और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके प्रचार से 3,000 लोग बचाए गए। So what I'm trying to tell here is, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि what you do with commitment, जो आप करते हो वादे से, you can do more with love. उससे ज्यादा आप कर सकते हो अपने प्यार से। So this is what the essence of today's message is. और ये है जो आपका आज का मैसेज है। We have living examples of missionaries, हमारे पास जीता जाता like है Graham Stone, उदाहरण है, like Graham Stone। Yeah, he was helping people. He was showing love. He never preached to the person who is getting the medicine with him. ग्राहम स्टेन्स कभी प्रचार नहीं किए, वो लोगों से प्यार करते थे, उनकी मदद करते थे। He never did. उन्होंने कभी नहीं किया प्रचार नहीं किया। Even after people were healed, or even after the medication of people, he never told them to convert. और यहाँ तक कि उनकी चंगाई मिलने के बाद भी उन्होंने कभी लोगों से पूछा नहीं कि अपना घर परिवर्तन करें। He just did the good deeds to the people. और उन्होंने जो किया वो ये किया कि वो उन्होंने अच्छी व्यवहार सबके साथ किया। That made people's heart to open door for Christ. और वो मुमकिन हुआ कि लोगों ने अपना दिल का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला। Yeah. This is what I want to conclude here. और यही मैं चाहता हूँ कि मैं समाप्त करना चाहता हूँ। So once again we can read that First Corinthians chapter और 13. एक बार और हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे। So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. और अब आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे जो है वो बड़ा प्रेम है। So love your neighbors. अपने पड़ोसियों से प्रेम करिए। And this situation, I want you to remember one thing. और इस परिस्थिति में मैं आपको चाहता हूँ कि एक चीज़ आप याद करें। So as we know corona is spreading here and over all the places, जो कि कोरोना वायरस फैल रहा है हर एक जगह पे, you need not worry about the people. आपको चिंता नहीं होना है लोगों के बारे में, You worry about the virus only. आपको चिंता करना है वायरस के बारे में। We need to fight with the virus, not with the people. आपको वायरस से लड़ना है, लोगों से नहीं। If you want to, if you come into contact with any people अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं who is having corona, जिसके पास कोरोना है और वायरस just contact the health system which government has set. और अगर आप ऐसा होता है तो आप सीधे You help him to come out of that situation. और आपको मदद करना है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। Don't just avoid him. You don't just separate him with you. हम उसको इग्नोर मत करें। So of course you have to do your safety precautions, ये सही बात है कि आपको अपनी सुरक्षा करना है, but still you have to love him पर फिर भी आपको उसे प्यार करना है so that he can come out of it and he may lead his normal life. सो वो ऐसा हो सके कि वो इस चीज़ों से छुटकारा पा सके। So with this we would like to conclude the message. और इसके साथ हम अपने वचन को समाप्त करते हैं। We can pray a little to God to help us to love others. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम दूसरों से प्यार करने वाले हो सकें। Lord, we thank you, we praise you for this wonderful situation. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस परिस्थिति में मदद करने के लिए।
Lord, we thank you for all the things which is happening all over the place. हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हर एक तरफ हो रहा है। Even though the situation seems like it is not in control, but we believe that you are control over, you have the control over all the situation that is happening. यहाँ तक की परिस्थिति बहुत बिगड़ी है, पर हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक सिचुएशन पे अपने काबू पाया है। Lord, we pray for the people who have been affected by the virus called Corona. हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस कोरोना से पीड़ित है। We pray for them to overcome the situation, to fight back the virus, and we pray them that they should improve in their immune system. हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं उनके पास उन्हें सामर्थ्य ताकि वो इस कोरोना से लड़ने वाले हो सके और इससे बाहर आने वाले हो सके। And Lord, we ask you grace to love others. और हम आपकी अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर, मेरे मदद करें कि हम दूसरों से प्यार करने वाले It is only through you, Lord, we can love others. क्योंकि आप ही के जरिए हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। Lord, fill us with your Holy Spirit to love others. हमें अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर अभिषेक करें To respect each humanity कि हम हर एक मानवता से उनका आदर करने वाले हो सके and give the same respect that God has given. और हम सेम सम्मान उन्हें दें, हर एक समान सम्मान उन्हें दें जो आपने हमें दिया है। Thank you हम उनका We धन्यवाद praise करते हैं, you. हम आपकी महिमा करते हैं and thank you for all that you have given us. और उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। जैसे कि आज आपने परमेश्वर का वचन सुना भाई जोशुआ के द्वारा विशाल ट्रांसलेशन में सहायता की, मैं धन्यवाद देता हूँ इन दोनों भाइयों के लिए। खासतौर से जैसे वचन में आपने सुना कि समर्पण अर्पणता से ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। जैसे वो इस वचन में उन्होंने बताया जैसे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय से कि हमारा अर्पणता कितनी भी हो, चाहे हम अपना शरीर को दान के रूप में भी दें, लेकिन हमारे बीच में अगर प्रेम नहीं रहेगा तो वो व्यर्थ है। तो हमारे जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पणता से मतलब कमिटमेंट से अधिक हमारे जीवन में प्रेम महत्वपूर्ण है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ खासतौर से ये फिर से आपको इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं ये मेरा शायद आपके साथ बातचीत करने का एक आखिरी हफ्ता रहेगा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ 3 साल तक आप सारे लोगों ने हमसे प्रेम रखा और हमें सेवा करने का, आपकी सेवा करने का मौका आपने दिया। मैं हमेशा धन्यवादित रहूँगा वाराणसी के सारे विश्वासियों के लिए। पिछले हफ्ता में पिछले संडे में हम सारे लोग स्टूडेंट्स लोग खासतौर से हमारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखे थे, सेंड ऑफ पार्टी। ज़रूर परिवारों को हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपके साथ बात करें। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए। एक जन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबों के लिए उसमें सारे लोग आ जाते हैं जो इसको देख रहे हैं, सारे लोग उसमें आ जाते हैं और हमारे परिवार के साथ हमेशा आप खड़े रहे हैं, हमें स्वीकार किए, हमें प्रेम दिए और हमारी ज़िंदगी में ये 3 साल जो हमारे जीवन में परमेश्वर दिया, ये हम ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। वाकई में मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए और हमेशा आप सारे लोग मेरे हृदय में रहेंगे और मेरी प्रार्थना हमेशा आपके लिए रहेगी और ज़रूर हम स्वर्ग में आनंद करेंगे साथ में। और बीच में जैसे हमें मिलने का मौका मिलेगा और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तक समय तक हम सारे लोग तैयार हो जाएंगे उसके आगमन के लिए। सबको जय मसीह।